Hello bachcho, let's read the question. Consider the functions fx and gx, both defined from R to R, that is set of reals to set of reals, and are defined as fx is equal to 2x minus x square, gx is equal to x raised to n, where n is from set of naturals. If the area bounded between fx and gx in the first quadrant is half, then n is a divisor of option A 12, option B 15, option C 20 और option D 30. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So the first key concept is area between the curves, say fx and gx, such that fx is greater than or equal to gx over the interval, over the values of x in the interval say a to b. So over this interval the area between these two curves is a equal to integral from say a to b fx minus gx times differential dx. अब इस की कॉन्सेप्ट के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास गिवन है फंक्शन fx दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड gx क्या है x रेज टू n where n is from set of naturals. अब आगे बढ़ने से पहले लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx एंड gx इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में वी आर फोकस्ड ऑन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ. So suppose this is our coordinate axis. यहाँ पर हमारा point origin. This is our x-axis. This is our y-axis. Let's specify a few points. So here are 1, 2, 3, 4 and so on. यहाँ -1, -2, -3. नीचे -1. y-axis पे 1, 2, 3, 4 and 5. अब यहाँ हमें फंक्शन fx का ग्राफ बनाना है. So fx is equal to 2x minus x square. Let's find out a few points which lie on this graph. तो मतलब पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम रूट्स निकाल सकते हैं. रूट्स ऑफ fx. रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, fx को हम 0 कंसिडर कर लेंगे. सो दिस गिव्स अस 2x minus x square is equal to 0. so यानी क्या, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x times 2 minus x is equal to 0 and this gives us x equal to 0 और x is equal to 2. तो मतलब जो ग्राफ है फंक्शन fx का वो x एक्सिस को x equal to 0 and x equal to 2 पे इंटरसेक्ट करता है. यानी these are our intersection point 0,0 and 2,0. लेकिन let's also evaluate the value of the function when x is equal to 1. f of 1 क्या आ जाएगा, f of 1 क्या आ जाएगा, f of 1 is equal to 2 times 1 minus 1 squared, यानी 2 minus 1 which is equal to 1. यानी जो फंक्शन f है वो 1,1 पे 1,1 से पास होता है. सो ये रहा हमारा पॉइंट. एंड जो फंक्शन है fx वो कैसे दिखेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट. यानी इन्वर्टेड पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमें पैराबोला देता है एंड सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव तो वो इन्वर्टेड होगा. यानी जो ग्राफ होगा फंक्शन fx का वो कुछ ऐसे दिखेगा. So such will be the graph of function fx. अब gx फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे. gx फंक्शन क्या है, x raised to n. We are focused in the first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो gx फंक्शन है वो कैसे दिखेगा, जनरल नेचर x raised to n का कुछ ऐसा होता है. See, it passes through point 0, 0. Also, it passes through point 1, 1. And the general nature is like this. So such is the graph of function gx. Now, our concerned region is this yellow part, which is bounded by fx and gx over the interval 0 to 1. So now let's call this region as A.
and let's get the area. A की एरिया निकाल लेंगे. अब A की एरिया कैसे निकाले? एरिया ऑफ रीजन A इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, यहाँ पर इंटरवल क्या है 0 से 1 तक, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ द अपर बाउंड इज function fx and lower bound is function gx. So fx minus gx times differential dx क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1 2x minus x square minus x raised to n times dx. अब इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? x square minus x cube by 3 minus x raised to n plus 1 divided by n plus 1. लिमिट्स क्या है? 0 and 1. अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 minus 1 by 3 minus 1 by n plus 1 माइनस लोअर बाउंड लगा लेंगे, लोअर लिमिट लगा लेंगे, आ जाएगा 0 0 0 यानी 0. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 2 by 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. अब आगे सिंप्लीफाई करने से पहले लेट्स फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन. हमें क्या दिया है? हमें एरिया दिया गया है. एरिया बिटवीन fx एंड jx इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज हाफ, यानी जो एरिया है, एरिया ऑफ ए, दिस इज हाफ. बट अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू 2 by 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 विल बी इक्वल टू 2 by 3 माइनस हाफ. अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? दिस इज 4 minus 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1 डिवाइडेड बाय 6. सो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा n plus 1 इक्वल टू 6. दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ n एंड दैट इज n इक्वल टू 5. अब n की वैल्यू निकल गई. अब ऑप्शंस चेक कर लेंगे. So 5 will not divide 12. See, we need to check n is a divisor of which numbers. तो अब 5 तो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 15 को डिवाइड करेगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 5 20 को डिवाइड करेगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 5 30 को भी डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. So our correct options are B, C, D. So this is our solution. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.